Now we discuss an important concept about probability, and that is related with class 12th exam as well as higher level exam, all the competitive exams. That is the concept of total probability. So when we discuss the concept of total probability की बात करें, so first of all there are some n events. There are n events and those n events are mutually exclusive as well as exhaustive. यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आप सीखेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी और उससे एक स्टेप फॉरवर्ड रहेगा बेस थ्योरम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर एन इवेंट्स, बेसिक से अगर हम बात करें, देयर आर एन इवेंट्स एंड दोज एन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव. When we say mutually exclusive, now it is very much clear to you that if I say mutually exclusive events, let's say there are n events E1, E2, E3 and up to En. ये n events है and those are mutually exclusive and exhaustive. अब ये बता दीजिए मुझे आप कि when we say mutually exclusive, what do you mean by that mutually exclusive? Mutually exclusive से क्या समझते हैं आप? Simultaneous occurrence is not possible. Simultaneous occurrence of any 2, any 3, any 4 is not possible. And what do you mean by the exhaustive one? Exhaustive का क्या मतलब हुआ? When I say exhaustive अगर मैं कहता हूँ तो exhaustive से मतलब होता है E1 union E2 union E3 union En. That is nothing but the sample space. ये sample space होता है exhaustive. इन सारी events को मिलाने पर you are getting the sample space. It is exhaustive. Exclusive simultaneous occurrence of any 2, any 3 is not possible. ठीक. बहुत छोटे से में कंसेप्ट समझ में आएगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट. ये जो आपकी बुक्स में जैसे बना के दिया जाता है उसी टाइप से बनाऊं मैं. These are the n events which are mutually exclusive as well as exhaustive. ये पूरा मिलाने पे it is becoming the sample space. ये sample space बन रहा है. अब हम ये कहते हैं कि there is some event A. कोई एक इवेंट है A इवेंट, और A इवेंट के बारे में ये बात है कि दैट इवेंट A occurs with any one of the n events, E1 और E2 और E3 और E4 और En. कोई इवेंट है A इवेंट है और वो A इवेंट या तो E1 के साथ होती है या E2 के साथ होती है या E3 के साथ होती है या E4 के साथ होती है या En-1 के साथ होती है या En के साथ में होती है. इन n में से किसी एक इवेंट के साथ में होती है वो इवेंट A. That is nothing but इवेंट A की बात कर रहा हूं. That is A intersection E1. This is A intersection E2, है ना? A intersection E3. A intersection En. कोई इवेंट है A इवेंट है, that event occurs with any one of, है ना? इवेंट A occurs with any one of E1 और E2 और En. और अगर मुझसे कहा जाए probability of happening of that event, है ना, probability of happening of that event, P of A की probability पूछी जाए, what is the probability of getting या happening of event A, event A होने की probability क्या है? अब event A कितने तरीके से हो रही है? या तो E1 के साथ होगी या E2 के साथ होगी. अभी जब मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा बहुत आसानी से समझ लेंगे आप, बहुत आसानी से, बट एक बार उसको लैंग्वेज वाइज तो देखें. तो इवेंट A या तो E1 के साथ में A होगा या E2 के साथ A होगा या E3 के साथ A होगा या फिर E4 के साथ में A होगा. तो आई कैन राइट इट P ऑफ E1 इंटरसेक्शन A, इवेंट E1 का होना और फिर A का होना, E2 इंटरसेक्शन A and En intersection A. Event A occurs with any one of, तो any one of तो या तो E1 के साथ होगा या E2 के साथ होगा या E3 के साथ होगा या En के साथ में होगा. ऑलरेडी हम जानते हैं
हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि इफ आई राइट P of A by B that is nothing but P of A intersection B divided by PB, right? So P of A intersection B clearly can be written as PB into P of A by B, right? So इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2, P of En into P of A by En. Probability of occurrence of E1 into, बस सर कैसे क्या? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इवेंट E1 का होना और E1 होती है तब A हो, फिर इवेंट E2 का होना और E2 होता है तब A हो. मैंने आपको बताया था ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चालू किया तो अब सब जगह लगने वाला. इवेंट E3 का होना और फिर E3 होता है तब A हो, या फिर इवेंट En का होना और En होता है तब A हो, राइट? दैट सम टुगेदर, इन सब का सम करने पर यू आर गोइंग टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट A, and that P of A is nothing but that is going to represent the total probability of occurrence of event A. ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए. मैं एक बार दोबारा रिकेप करूं. मैंने आपसे कहा, और भी व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग दिस कांसेप्ट इजीली, वेरी इजीली. इनफैक्ट देयर आर n इवेंट्स E1, E2, E3, En. फिर बाद में 2 इवेंट 3 इवेंट की बात कर लेंगे. अभी जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं. n इवेंट्स हैं और वो n इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव है. एक्सक्लूसिव का मीनिंग हम जानते हैं, साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द टू इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये E1 है तो फिर ये E2 है, अलग अलग है. साइमल्टेनियस ऑकरेंस इज नॉट देयर कि कुछ पोर्शन शेडेड दोनों में मिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं. एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर देयर एंड इट इज एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव मतलब इन सबका यूनियन लेने पे इट इज बिकमिंग द सैंपल स्पेस. एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव. अब ये कहा गया कि कोई इवेंट है A इवेंट एंड दैट इवेंट A ऑकर्स विथ एनी वन ऑफ दीज n इवेंट्स. या तो वो इवेंट A है, या तो E1 के साथ होगा, या E2 के साथ होगा, या E3 के साथ होगा, या फिर En के साथ में होगा. और आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट A. A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. ठीक है, तो इवेंट A ऑकर्स विथ एनी वन ऑफ दीज n इवेंट्स. फाइन. सो P of A इज नथिंग बट E1 इंटरसेक्शन A. इवेंट E1 का होना और E1 के साथ में A का होना, या E2 के साथ में A का होना, E3 के साथ में A का होना, या En के साथ में A का होना. एंड विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट आई हैव रिटन हियर, occurrence of E1 into P of A by E1, occurrence of E2, occurrence of into A by E2, and likewise up to n. We'll be discussing through examples and you will be getting that concept easily. Now look for the first example based on the total probability. देखिएगा. If you remember, we have discussed the question during the first or second class, and that was, if a leap year is selected, what is the probability of occurrence of 53 Sundays? And if a non-leap year is selected, what is the probability of occurrence of 53 Sundays? शायद results भी याद हो, अब तो ऐसा मुझे लगता है ना. Already we have discussed. Leap year में what was that probability? 2/7. और non-leap year में 1/7. Perfect, बिल्कुल ठीक बात है. मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन यस. अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, और चेंज कुछ ऐसा है. एन ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Sundays in that year, right? हाँ, नहीं ऐसे कुछ भी थोड़े ना, कुछ भी बोल दिया जाए. अब यहाँ पे क्लियर कट नहीं है, क्लियर नहीं है. एन ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम हैज 53 संडेज, या सॉरी मैं अगर कहूँ कि कोई ईयर सिलेक्ट किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 53 संडेज आर देयर इन दैट ईयर. 53 संडेज हो उस ईयर में. नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर 2 केसेस. 2 केसेस है, ये तो तय बात है. वन ऑफ द केस इज नॉन लीप ईयर
एंड द सेकेंड केस इज ऑफ लीप ईयर. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं जो लोग थे नहीं थे. नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज, और 365 डेज विच मीन्स 52 वीक्स एंड प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. as far as 52 weeks are concerned, 52 Sundays are going to be there. वो तो तय बात है. I want 53 Sundays. So for that 53 Sundays, that one day जो remaining एक दिन है, that must be Sunday. And if I ask you the probability of that, तो एक दिन extra है. There are 7 possibility from Monday, Tuesday, Wednesday. I think जरूरत नहीं. Out of those 7, एक ही possibility कि Sunday हो जाए. भाई 52 वीक्स के 52 संडे तो फिक्स है. जो एक दिन बचा हुआ वही संडे हो जाए तभी 53 होंगे. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दैट प्रोबेबिलिटी इज क्लियरली 1/7. अभी मैं यहां पे कहूंगा कि आई हैव सिलेक्टेड अ नॉन लीप ईयर, तो आई वांट 53 संडेज, 53 संडेज, लेकिन कब? जब नॉन लीप ईयर है. दैट इज व्हाट? शैल आई राइट डायरेक्टली 1/7? 1/7. At the same time, probability of 53 Sundays कब? जबकि लीप ईयर हो. लीप ईयर है, लीप ईयर में डेफिनेटली देयर आर 2 डेज देयर जो एक्स्ट्रा है ना. 52 वीक्स, 366 डेज, 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा. और जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं उनको अगर मैं लिखूंगा मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे, मंडे, तो टोटल अगेन देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज आर देयर. और उसमें 2 संडे आने की पॉसिबिलिटी, तो सैटरडे, संडे एज वेल एज संडे, मंडे, दीज आर द 2 पॉसिबिलिटी. दैट प्रोबेबिलिटी इज 2/7. अब एज फार एज 53 संडेज आर कंसर्न, वो तो इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है. लीप ईयर है तो लीप ईयर में भी 53 संडेज हो सकते हैं और नॉन लीप ईयर में भी 53 संडेज हो सकते हैं. प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है. आपसे पूछा गया है एन ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम है 53 संडेज है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए आप. बोले सर अब दिमाग में डाउट आना चाहिए. अगर मैं लीप ईयर कहता तो बात खत्म हो जाती 1/7. सॉरी, लीप ईयर में 2/7 और नॉन लीप ईयर कहता तो आप कहते कि 1/7. लेकिन अभी तो गड़बड़ है. अभी तो आपसे कुछ कहा नहीं, आपसे कहा गया कि कोई भी एक साल आपने सिलेक्ट किया उसमें 53 संडेज. पॉसिबिलिटी तो दोनों से है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव. सुनिएगा बात ध्यान से, अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव. एक्सक्लूसिव इसलिए कि अगर लीप ईयर होगा तो नॉन लीप ईयर नहीं, और नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर नहीं. एक्सक्लूसिव, राइट. एंड एग्जॉस्टिव, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी. और लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को अगर आप इंक्लूड करोगे, यूनियन लोगे, तो दैट विल बी द सैंपल स्पेस. और क्या हो सकता है? कोई भी साल होगा, या तो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, दैट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन. वो तो होना ही चाहिए. अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज. बहुत ध्यान से देखिएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, दैट इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देयर. कैसे? देखिएगा. प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर हो और नॉन लीप ईयर हो और उसमें इंटरसेक्शन 53 संडेज. मैं आपको अभी रिकेप करूंगा जो पुरानी बात मैंने कही थी. और लीप ईयर हो एंड इट इज हैविंग 53 संडेज. दोस्तों याद दिला दूं मैं आपको, प्रीवियसली जस्ट नाउ आई हैव मेंशन्ड व्हाट n events are there, E1, E2, E3, En. those are mutually exclusive as well as exhaustive. There is some event A which occurs with any one of these n, A intersection या E1 intersection A, E2 intersection A, E3 intersection A. समझ रहे हो क्या? वही तो बात हो गई. या तो 53 संडेज नॉन लीप ईयर है और 53 संडेज, और या फिर लीप ईयर है तो 53 संडेज. ये 2 पॉसिबिलिटी है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ. दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर into probability of 53 Sundays. पूरा लिख रहा हूं मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. when non leap year is there, probability of leap year into probability of 53 Sundays when a leap year is there. दोस्तों
नॉन लीप ईयर होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? नॉन लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ आई आस्क यू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर, हाँ, 3/4। एवरी फोर्थ ईयर इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर, तो 4 में से एक साल लीप ईयर होगा, तो नॉन लीप ईयर उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लीप ईयर इज क्लियरली 1/4। आ रहा है ना समझ में? तो इट इज नॉन लीप ईयर 3/4, और नॉन लीप ईयर में 53 संडेज आ जाएं 1/7, प्लस लीप ईयर इज 1/4 into 53 Sundays when leap year is there 2/7। दोस्तों रिजल्ट होगा 5/28। रिजल्ट इज 5/28। दैट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर से समझिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, दोनों बातें हैं यहां पर। लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर नहीं होगा, और नॉन लीप ईयर है तो लीप ईयर नहीं होगा। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इन दो के अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट विल बिकमिंग द कंप्लीट सैंपल स्पेस। कोई भी साल सेलेक्ट करोगे या तो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा। और 53 ये तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, ये 1/7 2/7 ऑलरेडी, फिर मैंने आपको रिकेप कर दिया, एंड यू हैव कैलकुलेटेड द टोटल प्रोबेबिलिटी। एक छोटी सी बात वैसे ही पूछ लेता हूं मैं आपसे, लीप ईयर कैसे डिसाइड करते हो आप? हाउ यू डिसाइड द लीप ईयर? डिवाइडेड बाय 4 ना। अरे इतना तो बताओ यार, क्या कर रहे हो अपन क्लास में, तो क्यों सोच में पड़ गए ना? छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपको, हाउ टू डिसाइड वेदर दैट गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। 2014 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर और नॉट। देन निकल गया, अभी तो ऑलरेडी फरवरी यार। इट वाज दैट। अरे क्या सोच रहे हो क्या? बोले सर कैलेंडर देख लेते हैं। भाई ऐसा मत करो। नॉन लीप ईयर 28 डेज देयर इन द फरवरी। ये तो ठीक है कि डिविजिबल बाय 4। मेरा एक सवाल आपसे, अरे ये तो ठीक है ना डिविजिबल बाय 4, इतना सोचने लगे आप लोग, टेंशन हो गया हम लोग। इन केस ऑफ सेंचुरीज देखो, अगर मैं कहूंगा सन 1700 जो बीत चुका है ना, अभी तो 2000 निकला था, उसके बाद में अब मतलब जो अगली सेंचुरी आएगी मतलब वो क्या आएगी, तो ये दोनों लीप ईयर होंगे या नहीं होंगे? सेंचुरी में एक जनरल नॉलेज वाली बात नहीं, काम की बात है। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स इन एनी वन ऑफ द वेज। क्वेश्चन में डाल दिया उन्होंने तो आप बात समझ में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक हम बात करें कि 4 से डिविजिबल, तो लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो क्लियर कट वो तो 4 से डिविजिबल है, और 4 से डिविजिबल होते हैं तो तुरंत हम कहेंगे कि सर आपने तो अभी कहा, आपने कहा है हम सदियों से मतलब बरसों से जानते हैं कि 4 से डिविजिबल है तो इट इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर। ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात। इन केस ऑफ सेंचुरीज है ना, सन 1600 1700 1800 समझ रहे हो ना ऐसे। इन केस ऑफ सेंचुरी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400 फॉर अ लीप ईयर। 4 से डिविजिबिलिटी तो हर बार रहेगी, वेदर इट इज इन द ईयर 1600 सेंचुरी या 1700। समझ रहे हो क्या? इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। 400 से अगर डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा। जैसे जो इन द ईयर 1700 जो भी रहा होगा, सन 1700, वो नॉन लीप ईयर था बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 4। लेकिन इन केस ऑफ सेंचुरी इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिविजिबल बाय 400 विच इज नॉट देयर। ध्यान रहेगा, कंसेप्ट क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल, देर आर 2 bags. Bag 1 is containing 10 white balls and 8 red balls. Bag 2 is there, that bag 2 is containing 7 white balls and 5 red balls. ये 2 bags हैं, दोनों bag में अलग अलग contents हैं। Now the question is, one bag is selected at random and a ball is drawn out of it. A single ball is drawn out of it. Find the probability of that drawn ball is red. जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो रेड कलर की बॉल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 बैग्स हैं, 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किया है एट रैंडम, और एक बॉल उसमें से ड्रॉ की गई है, और आपसे पूछा गया है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ड्रॉन बॉल इज रेड।
दोस्तों जहां तक कि रेड बॉल की बात की जाए तो रेड बॉल तो दोनों ही बैग्स में प्रेजेंट है, बैग 1 एज वेल एज बैग 2, ठीक है ना। तो रेड बॉल तो फर्स्ट से भी आ सकती है, रेड बॉल तो सेकंड से भी आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल बीइंग रेड, देखो रेड बॉल तो भाई मान लीजिए आपने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया तो फर्स्ट में से भी रेड आ जाएगी, है ना उसमें, और सेकंड में से भी रेड आ सकती है। एक बात कंफर्म है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, या तो बैग 1 है तो बैग 2 नहीं, और बैग 2 है तो बैग 1 नहीं, एंड एग्जॉस्टिव इन दोनों में से एक रहेगा बैग 2। आ रहा है क्या समझ में? तो रेड बॉल की अगर मैं बात करूं तो रेड बॉल की बात करूं उससे पहले कि बैग 1 को सिलेक्ट किया, रेड बॉल तो दोनों तरीके से आ सकती है। किन दो तरीके से? कि बैग 1 को सिलेक्ट किया और रेड हो जाए, प्लस रेड बॉल निकल आए, और बैग 2 को सिलेक्ट किया और रेड बॉल आ जाए, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सो दैट इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ द बैग 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल when bag 1 is selected, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया और फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने पर रेड बॉल आ जाए, प्लस सेकंड बैग को सिलेक्ट किया इनटू रेड बॉल जबकि सेकंड बैग को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट बैग? दो बैग हैं यार, या तो बैग ए को सिलेक्ट करोगे या बैग बी को सिलेक्ट करोगे या बैग 1 को सिलेक्ट करोगे या बैग 2 को सिलेक्ट करोगे। सो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन राइटिंग P of 1 एज वेल एज P of 2 एज हाफ। बैग 1 को सिलेक्ट करना प्रोबेबिलिटी इज 1/2, बैग 2 को सिलेक्ट करना दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बैग 1 को सिलेक्ट किया 1/2 इनटू बैग 1 को सिलेक्ट करने पर रेड आ जाए, बता सकते हैं आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट सिंगल बॉल इज रेड? 8C1 डिवाइडेड बाय 18C1। बड़ा साधारण सी बात लग रही ना, साधारण। 8C1 डिवाइडेड बाय 18C1 प्लस सेकेंड बैग को सिलेक्ट किया दैट प्रोबेबिलिटी इज क्लियरली हाफ इनटू गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, now you'll be getting the clear cut idea about the conditional probability। अभी आपको समझ में आ रहा है यार, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सब तो लग रहा है यहां पर। आगे बढ़ते आ रहे हैं, क्लैरिटी बढ़ती जाना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल 5C1 डिवाइडेड बाय 12C1 दैट इज 1/2 इनटू 8/18 plus 1/2 into 5/12. I hope you can calculate this and you are going to get the exact result. Probability of getting the red ball. अब मैं यहीं पे डायरेक्टली पूछ लूँ, एक सेकेंड, going for some more conclusion. What is the probability of getting a white ball? नहीं ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। हाँ, what is the probability of getting a white ball? तो जहां तक अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, सिलेक्शन ऑफ बैग 1 इंटरसेक्शन गेटिंग अ व्हाइट बॉल प्लस सिलेक्शन ऑफ बैग 2 इंटरसेक्शन गेटिंग अ व्हाइट बॉल। आई एम गोइंग टू राइट द रिजल्ट डायरेक्टली नाउ। सिलेक्शन ऑफ बैग 1 कैन बी डन बाय 1/2 ways and when 1/2 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज क्लियरली व्हाइट 10/18। डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10C1 डिवाइडेड बाय 18C1 10/18 plus half into white 7/12. That will be the probability of getting the white ball. That probability is in fact coming as, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ रहा है। What? Right? What about this? Exact 31/72. Okay. What about this? 41 divided by 72. That sum is becoming 72. 72/72 या तो बॉल व्हाइट होगी या फिर बॉल
रेड होगी 1 माइनस, ठीक है। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 31/72, सो ऑफ गेट या सॉरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 31/72, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल 1 माइनस 31/72 कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल विल बी 41/72, ठीक है। क्लियर है अभी तो आपको? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ अगेन लुक फॉर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेम 2 bags are there. Bag 1 is containing 10 white balls and 8 red balls. Bag 2 is containing 7 white balls and 5 red balls. Now the question is, one ball, अब की बात चेंज है ना, अर्लियर वन दोनों में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करके और रेड बॉल या व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी। अब की बार सवाल ये है कि एक बॉल जो है वो ट्रांसफर की गई है बैग 1 से बैग 2 में विदाउट नोटिसिंग दैट कलर, कलर आपने नोटिस नहीं किया, बैग 2 में ट्रांसफर करी और बैग 2 में ट्रांसफर करने के बाद एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, और फिर उसके बाद बैग 2 में से बॉल ड्रॉ की गई है और आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द दैट बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर। आपको क्या लगता है? यहां पे हमें 2 केसेस की बात फिर से करना पड़ेगी ना, 2 केसेस जो सबके दिमाग में आना चाहिए और आ चुके होंगे, और वो ये कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो व्हाइट हो तब क्या हिसाब किताब, और अगर ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो तब का हिसाब किताब। तो दीज आर द 2 केसेस इन फैक्ट, है ना। इन दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट एंड देन ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। नाउ लुक फॉर द रिजल्ट और सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो ये बात हमने प्लान किया, ठीक है। तो 2 केसेस बना लेते हैं इवन, एक तो इवन बोलता हूं मैं, इवन से अगर डिनोट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन से डिनोट करूं, या इवन इज द इवेंट। व्हाट इज दैट इवेंट? इवेंट ये है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है ये व्हाइट कलर की है, और जो सेकंड है उसको E2 से डिनोट कर दूं, A1 A2 से डिनोट कर दूं, आपके ऊपर है। जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड कलर की है। 2 केसेस बनेंगे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग में से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। लेकिन रेड बॉल आने के लिए आवश्यक है 2 केसेस, तो दोनों की बात कर लें। इवन इंटरसेक्शन रेड, शायद आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, जहां तक मुझे लगता है जरूर सोचना चाहिए। E2 इंटरसेक्शन रेड, राइट। या ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट है तब रेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और ट्रांसफर्ड बॉल रेड है तब उस बात की प्रोबेबिलिटी कि फिर रेड आ जाए, राइट। तो इट इज नथिंग बट P ऑफ E1 इंटू P ऑफ रेड बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ रेड बाय E2, राइट। अभी कंफर्टेबल है आप लोग? ये लिखने में लिख सकते हैं ना, आप समझ में आती है बात ना कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो P ऑफ E1, यस, ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट बॉल इसमें से निकाल के और इसमें डालें, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या लगता है आपको? भाई व्हाइट बॉल एक निकाली और इसमें रख दी, तो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 10/18, 10C1 डिवाइडेड बाय 18C1, परफेक्ट, 10/18। और एक बात है, या तो व्हाइट होगी या रेड होगी, एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, 10/18, एक का सम 10, एक का रिजल्ट है 10/18, दूसरे का 8/18, तो 10/18 इंटू, अब मान लीजिए कि व्हाइट आपने जब इसमें रखी तो नाउ इट बिकम्स 8 व्हाइट 5 रेड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल 5/8 प्लस 5 13, 5/13 प्लस P ऑफ E2 अगर मैं लिखता हूं तो P ऑफ E2 रेड बॉल, रेड इज 8/18 इंटू रेड बॉल को आपने ट्रांसफर किया तो नाउ इट बिकम 6 रेड एंड 7 व्हाइट, 6 डिवाइडेड बाय 13। कोई दिक्कत तो नहीं? दीज आर द 2 केसेस। ये 50 हो गया, ये 48 हो गया, 98 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 13, व्हाट इज दैट रिजल्ट? मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, जो भी आ रहा है that is nothing but the total probability, that is the probability of getting that red ball। दोनों केसेस क्लियर है पक्का? यार एक बॉल जो निकाली वो व्हाइट है तब, और फिर तब रेड आ जाए, और दूसरी जो बॉल ट्रांसफर किया वो रेड हो तब फिर रेड आ जाए। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है।
नाउ अगेन देयर इज स्लाइट चेंज इन द क्वेश्चन. अर्लियर हमने कहा था एक बॉल ट्रांसफर करिए बैग 1 से बैग 2 में. नाउ द क्वेश्चन इज बैग 1 बैग 2 एंड कंटेंट्स आर गिवन टू यू. 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2 without noticing the color, and 2 balls are drawn from bag 2. Find the probability of getting both red balls. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, जरूर कर लिया, एंड आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अब की बार यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल हैं, E1, E2, E3. E1 के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर्ड बॉल्स हैं आर ऑफ रेड कलर. दोनों जो ट्रांसफर की गई बॉल्स दोनों रेड कलर की हो. व्हाइट कलर और जो ट्रांसफर्ड बॉल्स हैं आर ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 रेड. एक व्हाइट एक रेड, यही 3 केस हैं. हमें कहा गया दोनों रेड, 2 बॉल्स ड्रॉ करिए आपने बैग 2 में से, और 2 बॉल्स जो ड्रॉ की आपने दोनों रेड कलर की आ जाएं. ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल्स है ना, दोनों ये दैट इज द इवेंट है ना. अब इसको और क्लियर कट लिखना है तो P ऑफ E से भी डिनोट कर सकते हैं. मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे रेड बॉल्स, तो आप चाहें तो E से डिनोट कर दें और E को यहाँ पे मेंशन कर दें कि टू ड्रॉन बॉल्स आर रेड, ऐसा लिख सकते हैं आप. तो ठीक है, इज इक्वल्स टू P ऑफ E1 एंड E1 इंटरसेक्शन रेड बॉल्स प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन रेड बॉल्स प्लस P ऑफ E3 इंटरसेक्शन रेड बॉल्स. Right? It is nothing but P of E1 into P of 2 red balls when E1 has already occurred. ठीक है ना. P of E2. यार दोस्तों एक बात मैं जरूर समझाऊंगा कि आपको प्रॉपरली लिखते भी आना चाहिए. आप हवा में ऐसे कर लिया, हो गया सर, हो गया हो तो ठीक है, आपको प्रॉपरली लिखना आना चाहिए. बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क की कैटेगरी में आएगा ये, तो आपको प्रॉपरली लिखना बनना चाहिए. हाँ सर ऐसे 2 लाइन में से दिखा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर वो 2 ही नंबर मिलेंगे 6 में से. तो पूरे मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट राइटिंग स्किल्स ठीक होना चाहिए. राइटिंग स्किल मतलब कि आपको मेंशन करना चाहिए कि E1 इवेंट क्या है, E2 क्या है, E3 क्या, आप लिख क्या रहे हैं. ऐसे केवल 2 लाइन में रिजल्ट लिख दिया तो आप भी समझते हैं कि फिर वो दिक्कत होती है मार्क्स देने में भी. ठीक, चलिए बताते जाएंगे. P ऑफ E1 के अकॉर्डिंग दोनों ट्रांसफर्ड बॉल रेड कलर की बॉल्स हैं. आप बताएंगे मुझे. यस, 8C2 डिवाइडेड बाय 18C2. शायद सभी लोग लिख पा रहे हैं ना. 8C2 डिवाइडेड बाय 18C2. अब जो पोजीशन है वो ये है कि 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, 2 रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, तो 5 + 2 नाउ 7 रेड बॉल्स आर देयर, राइट. और 7 में से 2 रेड बॉल्स ना, 7C2 डिवाइडेड बाय नाउ इट इज 2 रेड बॉल्स हो गई, यहां पर बढ़ गई, तो 7 + 7 14. 12 मत करिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि सैंपल स्पेस चेंज हो गई ना. 12 + 2 14 प्लस ट्रांसफर्ड बॉल वाइट C2 डिवाइडेड बाय 18C2. दो व्हाइट बॉल्स इसमें ऐड हुई हैं, दोनों रेड आना है आपको, तो जो रिक्वायरमेंट है 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल 5 + 7 12 प्लस 2 और व्हाइट आ गई 14C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट E3. आपको इसको भी अलग से लिखना है तो लिख के बता सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे क्लियर है वो. P ऑफ E3 के अकॉर्डिंग एक रेड और एक व्हाइट
बोलिए जरा, एक रेड और एक वाइट, 10C1 इंटू 8C1 डिवाइडेड बाय 18C2। आपने भी चेक करिए, यही लिखा है, एक रेड एक वाइट, यही लिखा है, चेक कर लीजिए। बोले सर कुछ नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। एक वाइट और एक रेड यहां पर ऐड हो गई। नाउ इट इज, हमारी रिक्वायरमेंट है दोनों रेड आ जाएं। एक वाइट और एक रेड यहां पर ऐड हुई है, सैंपल स्पेस तो 14 की बन गई। 6C2 डिवाइडेड बाय 14C2 टोटल करिएगा, दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, दैट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आते जा रहा है समझ में? ठीक है ना? अब वो कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ वाइट बॉल्स, तो आप निकाल लेते यार। वो कहता एक वाइट एक रेड, वैसा निकाल लेते आप। ठीक है ना? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब कुछ कर लोगे। एंड कैसे लिखना उसको लैंग्वेज वाइज, क्या E1 है, क्या E2 है, क्या E3 है, क्या कंडीशनल है। ठीक है? और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे से एडवाइस कर रहा हूं, अभी कोई हाई फाई बुक्स की हेल्प मत लीजिए। बेसिक एनसीईआरटी एज वेल एज सम रेफरेंस बुक जो आपके स्कूल में चलती है, वेदर इट इज आरडी, आरएस, कोई भी केसी सिन्हा वगैरह, जो भी बेसिक लेवल की बुक हो उतना ही देखो। अभी so many questions are there based on the total probability as well as base theorem। बाकी तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक बार वो जब बेस आपका ठीक बन जाए तो फिर आप आगे की बात करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेस ही हिला हुआ है और फिर आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी ये किताब कभी वो किताब, तो मतलब नहीं है उसमें। बेस स्ट्रांग बनाइए और फिर पढ़िए जितना पढ़ना है, कौन मना करता आपको। अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, तो इलेक्शन सीजन से रिलेटेड ही बात की जाए। रिसेंटली वोटिंग वगैरह हुई है और पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस हुए हैं। So there is a single post of MP, member of parliament। So there is a single post there। जो आप भोपाल की बात करें तो भोपाल में there is a single post। Let's say there are 4 candidates are there and those are contesting for the position of this MP, right? 4 candidates are there है ना, हम नाम नहीं ले पाएंगे, ABCD अपने लिए बेहतर रहेगा। तो P of A, there are 4 candidates, right? 4, केवल 4 ही हैं, P of B, P of C and P of D। अब there are 4 candidates। एक बात तो कंफर्म है, और वो कंफर्म है कि 2 इवेंट्स, अब किसी एक को सिलेक्ट होना है या किसी एक को इलेक्ट होना है, तो बाकी 3 का तो रिजेक्शन होगा, तय बात है। MP तो कोई एक ही बनेगा, जीतने वाला तो कोई एक ही है, तो बाकी 3 तो रिजेक्ट होंगे, राइट? एक्सक्लूसिव, एक का सिलेक्शन बाकी 3 का रिजेक्शन। एंड एग्जॉस्टिव बिकॉज इन चारों में से किसी एक को बनना है। लड़ाई ये 4 है, ठीक है ना? लड़ाई जब ये 4 हैं या इन्होंने फाइट करी तो ठीक है, इन्हीं में से किसी एक को बनना है। एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, समझ रहे हो क्या? A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, दैट विल बिकम द सैंपल स्पेस। जो भी है भैया इसी में से है बात। एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। सो आई राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ या चांसेस, हम कहते हैं ना चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी इज मोर एंड इसका लेस है। तो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ कैंडिडेट A, लेट्स से इट इज 0.4, राइट? Probability of winning of B, candidate B, is 0.3. Probability of winning of this C is 0.2. And probability of winning of D, even if it is not given, हम बता पाएंगे, हमें बताना ही चाहिए कि probability of winning probability of D is clearly going to be 1 माइनस ऑफ, क्योंकि एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी देगा तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड टू अस दैट ओके इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस ऑफ सम ऑफ दीज 3 विच इज 1 माइनस 0.9 विच इज गोइंग टू बी 0.1, राइट?
So these are the winning probabilities of 4 candidates A, B, C, D which are contesting for the position of MP. Right? What is happening here? These are the 4 candidates. What is happening now? That some policy decision is there. कुछ policy decision है related with that development of Bhopal or related with some any other issue. One particular issue. जो भी बात है वो किसी एक particular development से related बात है. Now what is happening? ध्यान से देखना है, बहुत ठीक ठाक है, इसलिए नहीं जीत हार वाली बात नहीं, आपको मतलब नहीं अभी कौन जीत रहा हार रहा, लेकिन ये है कि if A wins and a new policy is launched, one particular policy, राइट, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी है कि भैया झील की सफाई हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए फिलहाल, या झील और खूबसूरत हो जाए, ऐसा जो भी आप सोचें, तो चलिए झील से रिलेटेड ही बात करें. P of E by A, that policy, if A wins and that new policy is launched, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ दैट लेक, let's say it is 0.5. A wins and then policy is launched, policy of development of that lake. B wins and a new policy is launched, and the same policy, I am talking about the same policy, he is somewhat reluctant, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट कहीं और होगा, जो भी है कहीं और, मतलब दूसरे एरिया में हो सकता है, मतलब गलत मत सोचिए आप. P of, if C wins the election and a new policy is launched, है ना, same policy, let's say it is 0.9, highly inclined towards that. And if D wins and a new policy is launched, is moderate towards that 0.4. ठीक है, ये तो डेटा जो गिवन डेटा आपको, ठीक, क्लियर है. क्वेश्चन तो अभी, क्वेश्चन की बात तो अभी हम करते हैं और आप कहेंगे अरे सर क्या सवाल है, कुछ दम नहीं. 4 candidates are there. These are the winning probabilities given to you, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. They are contesting for a single position of member of parliament. If candidate A wins and a new policy is launched regarding the development of lake, is 0.5. If member B wins, elected, if B elects, B is getting elected, then new policy is launched is 0.1. C wins and a new policy is launched is 0.9 and D wins and a new policy is launched is 0.4. ये डेटा आपको गिवन है और आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू पॉलिसी is launched. नई पॉलिसी लॉन्च होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए. अभी तक आपने काफी सारे सवाल देख लिए और आपके लिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए. इट इज नथिंग बट अ क्लियर कट एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. क्योंकि P ऑफ E पॉलिसी तो चारों लोग लॉन्च करेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं. A इंटरसेक्शन E, B intersection E, C intersection E, and D intersection E. Right? A wins and a policy is launched, B wins and a new policy is launched, C wins, D wins. How you are going to write it? P of A into P of E by A, P of B, P of E by B, P of C, E by C, and P of D, E by D. राइट? करना क्या है? सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन. 0.4 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.4. राइट? ऐड कर लीजिए.
0.20, 0.03, 0.18, 0.04, क्या आ रहा है टोटल? पॉइंट 2, 0.18, 0.38, 0.41, 0.45. That is nothing but the total probability of that policy is being launched. नई पॉलिसी लॉन्च होगी, वॉट एवर दैट पॉलिसी, सिंगल पॉलिसी इज देयर, है ना, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉलिसी ना, दैट इज ई, P of A, winning probability of A, P of E, probability that a new policy is launched. I think बहुत आसानी समझ में आ जाना चाहिए ना. अगर ये पूछा जाता find the probability that a new policy is not launched, yes, you can definitely go for 1 minus of that, 1 minus of 0.45. So 1 minus of 0.45, that will be 0.55. That will be the probability of that policy being not launched. ठीक है ना. अगर ये पूछा जाता P of E bar, that is 1 minus of P of E, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, 0.55. फाइन. अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, मैंने आपसे कहा एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, तो सम ऑफ दीज 4 इज क्लियरली इक्वल्स टू 1. फिर दोस्तों उधर 1 मत बना देना, बोले सर इसका भी तो 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा मैंने. हो सकता है कि ए जीते और नई पॉलिसी लॉन्च करे, 100% 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका 1 बनाने की कोशिश मत करिएगा, बस इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा. सुनिए ध्यान से, बोर्ड पे देखिए, P of E by A, which is 0.5, probability that A wins and a new policy is launched is 0.5. So if A wins and a new policy is not launched, कितना होगा? मेरा सवाल आपसे ये कि if A wins and a new policy is not launched, 0.5, 0.5 लॉन्च करे तो 0.5 नहीं करेगा. B wins and a new policy is not launched, लॉन्च करे 0.1 तो नहीं लॉन्च करेगा 0.9. समझाने की आवश्यकता तो नहीं, अलग क्लियर है ना. P of, क्योंकि अपने को तो भी समझना है, not launching the policy by C, ठीक है, that is the approach. So we have discussed the concept of total probability. और एक बार फिर वहीं से बात चालू करें हम. So we have discussed the concept of total probability, and again I write the same. There are n events, E1, E2, E3 and up to En, and those n events are exclusive as well as exhaustive. ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट किया था हमने बात. E1, E2, ठीक, and these events are exclusive as well as exhaustive. ये क्लियर है आपको, है ना. That means E1 union E2 union E3 is becoming the sample space. An exclusive simultaneous occurrence of any two is not possible. Again, there is some event A and there is some event A which occurs in with any one of these n. वो जो इवेंट है वो इन n में से किसी भी एक इवेंट के साथ में हो रही है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, उसी बात को मैं रिकैप कर रहा हूं. A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3, A इंटरसेक्शन En, राइट. राइट. सो अभी जब हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट, तो ठीक है, P ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट E1 आप कहेंगे सर बात हो गई है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, बात हो गई. हाउ टू राइट ये भी क्लियर है आपको.
ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। अब इसको कुछ ढंग से कहा जाए कि सब कंडीशंस वैसी ही हैं, देयर आर एन इवेंट्स which are exclusive as well as exhaustive, there is some one particular event which occurs with any one of these n at a time, किसी एक के साथ में होगा, या तो E1 या E2 या ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट किया, दैट वाज द टोटल प्रोबेबिलिटी। बट अब मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, और ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या था P ऑफ A बाय E1, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? A बाय E1 से क्या कंक्लूड करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A when event E1 has already occurred। अब तो क्लियर है बात तो आप लोग। अभी मैं आपसे कहता हूं that event A has already occurred। event A किस किस के साथ में हो सकती है? E1, E2, E3, En सबके साथ में हो सकती है, ठीक है। now the question is event A has already occurred, event A already हो चुका है, ये बताओ कि it has happened, या इवेंट ए तो ऑलरेडी हो चुकी है, इट इज बिकॉज ऑफ E1, या इट इज बिकॉज ऑफ E2, या इट इज बिकॉज ऑफ E3, या इन जनरल अगर EI लिखता हूं मैं, है ना, I जो भी है EI से अगर मैं डिनोट कर रहा हूं तो I इज क्लियरली फ्रॉम 1 to n, E1, E2, E3, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में चेंज है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। A अपॉन E1 और E1 अपॉन A, बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें। A अपॉन E1 से मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, और E1 अपॉन A का मतलब है कि A ऑलरेडी हो चुका है, तब ये इट इज बिकॉज ऑफ E1। ये बताओ, तो इवेंट A तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवेंट A ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज नथिंग बट P ऑफ A विच इज देयर इन द डिनोमिनेटर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवेंट ए के होने के तरीके, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए। आप क्या चाहते हो कि ए तो हो चुका है, ये बताओ कि E1 के कारण हुआ है। दैट इज द रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट रहेगी ना, ये फेवरेबल स्पेस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, तो दैट इज नथिंग बट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, दैट विल बिकम द सैंपल स्पेस। एंड इन द न्यूमरेटर इवेंट ए तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इट इज बिकॉज ऑफ E1, तो EI इंटरसेक्शन A, E1 है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, E2 है तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, E3 है तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोबेबिलिटी। इतनी सी बात है वो। रिवर्स इसलिए बोलते हैं इसको कि हमने कहा कि ये इवेंट ए इन एन इवेंट्स के साथ में हो सकती है। अब ये कहा कि ए तो हो गया, इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इट इज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ E1, रिवर्स। और यही रिवर्स प्रोबेबिलिटी जो है, दैट इज नथिंग बट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, और बहुत आसानी से आप सीखेंगे, बहुत आसानी से। बट फर्स्ट जस्ट नोट डाउन दिस, है ना, ये तो सब वैसे ही रहा, दैट इज द ओनली पार्ट। इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, इट इज बिकॉज ऑफ EI, so that P of A is there in the denominator, that will become the sample space for occurrence of A, and occurrence of A when occurrence of A with EI। अगर वो E1 कहेगा तो E1 अपॉन A, तो यहाँ पर E1 लग जाएगा। P of A क्या है, ये ऑलरेडी आपके सामने है, प्लीज नोट डाउन दैट फास्ट। And we'll be discussing 2-3 questions and you will be getting that concept easily, in fact very easily. Now look for the example of Bayes theorem. Again, just now I have discussed the question based on the election. So again there is a single post of MP, election हो रहा है, and there are 3 candidates now. And now it is very clear, exclusive as well as exhaustive. Winning probability of A 0.5, winning probability of B is 0.3. And if it is not given, then winning probability of C is going to be 0.2, 1 minus of that। ये तो exclusive और exhaustive है, ठीक है। अभी again, अब मैं कहता हूँ कि हो ये रहा है कि if A wins and a new policy is launched, same ना, let's say it is 0.8। If B wins and a new policy is launched, let's say 0.3, and if C wins and a new policy is being launched,
that is given as 0.7. ठीक है, these are the probabilities of launching a policy when particular candidate wins. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू पॉलिसी तो आप आसानी से आप कैलकुलेट करके रख देंगे, जरूर कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये डेटा सेम गिवन है, इफ ये सब कुछ डेटा देने के बाद में, है ना, लॉन्चिंग विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एबीसी एंड लॉन्चिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट व्हेन एबीसी विंस, दैट इज गिवन टू यू। ये ऑलरेडी आपके पास है। इफ पॉलिसी इज लॉन्च्ड फाइनली, क्वेश्चन ये है, डेटा जो देने के बाद में, डेटा जो दिया है उस बात को समझना भी बेहद जरूरी होता है कि आप प्रॉब्लम का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन करें, जो उसने बोला है वैसे ही लिखें। अब आपने क्या बोला है और क्या लिखा है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा वो, है ना। इफ पॉलिसी इज लॉन्च्ड फाइनली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट it was launched by B. क्वेश्चन ये है, चेंज है। प्रीवियस टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या बात की थी हमने? टोटल प्रोबेबिलिटी में बात की थी कि नई पॉलिसी लॉन्च हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अभी क्या है? अभी ये कि पॉलिसी तो लॉन्च हो गई है, पॉलिसी इज बीन लॉन्च्ड फाइनली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय बी। ये पॉलिसी जो लॉन्च हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ बी, या बी ने लॉन्च करी है, बी ने जीत के लॉन्च करी है। देखो, इफ आई राइट पॉलिसी इज लॉन्च्ड फाइनली, क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछा है उसने? पूछा ये है पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, दिस इवेंट हैज बीन ऑलरेडी ऑकर्ड, पॉलिसी तो लॉन्च हो गई है, ये बताओ कि इट इज बिकॉज ऑफ बी, बी बाय ई। आपको ये डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर ये ई बाय बी और बी बाय ई। बी विंस द इलेक्शन एंड न्यू पॉलिसी इज बीन लॉन्च्ड, 0.3। पहले समझिए। और नई पॉलिसी तो लॉन्च हो चुकी है, बताइए कि इट इज बिकॉज ऑफ बी, दैट इज बी बाय ई, राइट। एंड फॉर दैट जस्ट नाउ आई रिटन, नई पॉलिसी तो लॉन्च हो गई है, तो नई पॉलिसी लॉन्च हो गई है, probability of launching a new policy that will be there in the denominator। and कब? पॉलिसी तो 3 लोग लॉन्च कर रहे हैं, ए जीत के, बी जीत के और सी जीत के। आपको क्या चाहिए? बी के द्वारा की गई है, बी इंटरसेक्शन। P of E सेपरेटली लिख देता हूं, P of E इज नथिंग बट, एक बार फिर से लिख रहा हूं, A इंटरसेक्शन E प्लस B इंटरसेक्शन E। तो टोटल प्रोबेबिलिटी से एक स्टेप फॉरवर्ड, दैट इज अबाउट द रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, P of A 0.5 इंटू 0.8 प्लस 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.7, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू पॉलिसी। कितना हो रहा है दोस्तों ये? हाँ जी, 0.63, okay, 0.63 is the total probability. What do you want? You want P of B by E, that is nothing but, ये ऑलरेडी इसको न्यूमरेटर में रख देंगे आप, .3 into 0.3 divided by 0.63,
दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी की? पॉलिसी तो लॉन्च हो चुकी है, इट वॉज लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ बी, ये बी के द्वारा की गई है। दैट इज नथिंग बट द रिवर्स वन। रिवर्स इसलिए बोलते हैं इसको कि इवेंट तो हो चुकी है, इट इज बिकॉज ऑफ बी, रिवर्स। तो एक स्टेप फॉरवर्ड किससे? टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज दिस। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आप एक और बात नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। एक तो ये हो गया, अब सेकंड लिखिए आप, इफ पॉलिसी इज नॉट लॉन्च्ड फाइनली, इफ पॉलिसी इज नॉट लॉन्च्ड फाइनली, find the probability that it was not launched by C। करिए जरा, देखिएगा, पॉलिसी इज नॉट लॉन्च्ड फाइनली। आपसे पूछा गया है, आपसे अब की बार जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि पॉलिसी लॉन्च नहीं हो पाई। पॉलिसी लॉन्च होने को मैंने ई से डिनोट किया, तो ई का कॉम्प्लीमेंट डिनोट करेगा पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ सी, सी ने लॉन्च नहीं करी है, ऐसा ये पूछा गया आपसे। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम ये फाइंड आउट कर लें कि पॉलिसी लॉन्च हो गई है और इट वाज डन बाय सी, और उसको 1 माइनस कर दें, ऐसा कर सकते हैं। भाई बी लॉन्च करेगा, इफ बी विंस द इलेक्शन एंड न्यू पॉलिसी इज लॉन्च्ड, सॉरी नई पॉलिसी लॉन्च होने के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमने फाइंड आउट किया, तो वो नहीं होगा तो वो 1 माइनस करके आ जाएगा। अभी देखिए जरा, अपन वेरिफिकेशन की बात कर लें, बेहतर रहेगा। देखो अभी मेरा टारगेट है, अभी मान लीजिए मैं पहले कैलकुलेट करता हूं सी बाय ई, पॉलिसी लॉन्च होना कब? जब बिकॉज ऑफ सी, तो इट इज देयर इन द पी ऑफ न्यूमरेटर में पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई, दैट इज ऑलरेडी नोन टू यू, दैट इज 0.63। पी ऑफ सी बाय ई, इट इज पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ E by C, and P of C is 0.2 into 0.7 divided by P of E, which is 0.63, which is nothing but 14 by 63, right? और 1 माइनस करेंगे तो विल बी गेटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ सी। जरा वेरिफिकेशन अपन करना चाहेंगे तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। C बाय ई जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 14 बाय 63। अपने अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आना चाहिए? अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए कि C ने नहीं करी लॉन्च। 1 माइनस ऑफ 14 बाय 63 कितना हो रहा है? ये 1 माइनस ऑफ 14 बाय 63, ठीक है ना? कितना है? 49 डिवाइडेड बाय 63। अब जरा इसको दूसरे ढंग से भी करें ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस्ट रहेगा। देखो पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है, सी के द्वारा नहीं हुई है ऐसा, ठीक। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पॉलिसी लॉन्च ना हो, पॉलिसी लॉन्च ना हो तो वो यहां पर भी डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए आपको। ये क्लियर है ना? समझा चुका हूं आपको कि P ऑफ E बाय A 0.8 है, तो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय 8 इज गोइंग टू डिवाइडेड बाय इज गोइंग टू बी 0.2। प्रजापति जी समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं आ रहा है? E बाय A इज 0.8, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। E बाय A की वैल्यू अगर 0.8 है तो E कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय A की वैल्यू क्या होगी? तो 0.2। एक तरीका तो ये है कि A इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट प्लस C इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, मैंने समझाया था आपको अभी अभी, समझा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 1 माइनस करके भी ठीक है और दूसरे तरीके भी से देखिए, सीखना है अभी। पॉइंट 0.63 तो 1 माइनस 0.63 रिजल्ट आना चाहिए, सीखना है, करते हैं। P ऑफ A 0.5 इंटू 0.2 प्लस P ऑफ B 0.3 इंटू 0.7 और P ऑफ C 0.2
इंटू 0.3, कितना आ रहा है? आना तो कितना चाहिए? हो तो 1 माइनस 0.63 आना ही चाहिए, वो 0.37। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0.37, फाइन। अर्लियर जो हमने रिजल्ट कहा है वो 49/63 है। लेट्स वेरीफाई दैट आता है कि नहीं आता है। नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज P ऑफ C अपॉन E कॉम्प्लीमेंट, राइट? P of C, what is that P of C? ये रहा 0.2 into 0.3 divided by 0.37, कितना आ रहा है ये? 6/। अब ये बताओ क्या रिजल्ट मैच हो रहे हैं क्या? पहले क्या रिजल्ट था? 49/63, 7/9, it is coming as 6/37। समझ रहे हो क्या? These two results are not coming same, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा? सुनिएगा इस बात को, इसीलिए पूरा करके बताया मैंने आपको कि पॉलिसी पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था कि P ऑफ C बाई E, पॉलिसी तो लॉन्च हो गई है, ये बताओ कि C के द्वारा की गई है, यही किया था हमने, और उसको 1 माइनस किया था ना आपके सामने अभी। भाई द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट इट वाज लॉन्च्ड एंड लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ B, वो तो समझ में आ गई ना बात। अभी तो हम थोड़ी सी आगे की बात कर रहे हैं उसमें। तो हमने P ऑफ C बाई E फाइंड आउट किया और 1 माइनस करके कोशिश करी। दोस टू रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग, वो मैच नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है हम वैसा नहीं कर सकते कि आपसे पूछा गया है कि पॉलिसी इज नॉट लॉन्च्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ C। तो हम ये नहीं कर पाएंगे कि P ऑफ C बाई E फाइंड आउट कर लिया और 1 माइनस कर लें, वो अलग अलग ही करना पड़ेगा उसको, ये ध्यान रखने वाली बात है। इतना जरूर कर सकते हैं आप यहाँ पे कि P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0.37, दैट इज ओके। पॉलिसी लॉन्च होगी उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.67 है तो नहीं, या 0.63 है तो 0.37 नहीं लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे आप 1 माइनस डायरेक्टली। विल बी टेकिंग सम मोर क्वेश्चन, हम और डिस्कस करते हैं इस बात को। लुक फॉर द क्वेश्चन based on the reverse probability. There are two bags. Earlier we have solved for the total probability. There are two bags. Bag 1 is containing 7 red and 10 white balls. Bag 2 is containing 10 red and 8 white balls. ये दो bags के दोनों के contents हैं। हुआ क्या? One bag is selected at random and a ball is drawn out of it. एक bag select किया और एक ball draw की है। Drawn ball is of red color. जो बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की, ये पता है आपको। इवेंट इज नोन टू यू। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ दैट इट केम फ्रॉम द बैग 1। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यार ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ये लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए क्या चाह रहा है वो ये चाह रहा है भैया कि ड्रॉन बॉल इज ऑफ रेड कलर। हमें पता है कि कौन से कलर की बॉल आई है, रेड कलर की बॉल तो आ चुकी है। ये बताओ कि इट इज कमिंग, भाई रेड तो इसमें से भी आ सकता है, रेड इसमें से भी आ सकता है। ये बताओ रेड तो आई है, ये बताओ कि इट इज कमिंग फ्रॉम बैग 1। एज फार एज सिलेक्शन ऑफ बैग इज कंसर्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग दैट इज क्लियरली हाफ। फर्स्ट बैग सिलेक्ट करोगे 1/2, सेकेंड बैग सिलेक्ट करोगे 1/2। अभी उसने कहा है रेड बॉल तो आ चुकी है, ये बताओ कि फर्स्ट बैग से आई है। probability of getting the red color ball, that is nothing but the total probability। जो डिनोमिनेटर में जो लिखा जाता है that is nothing but the total probability। किस बात की total probability? रेड कलर की बॉल आ जाए उस बात की probability। एंड P ऑफ, ये रेड कलर की बॉल फर्स्ट बैग से आई है, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया और रेड। P ऑफ रेड, ध्यान से देख लें दोस्तों, टोटल प्रोबेबिलिटी, हर जो भी सवाल बेस थ्योरम का होगा टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। रेड कलर की बॉल तो दोनों से आ सकती है, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया और रेड, प्लस सेकंड को सिलेक्ट किया और रेड। P ऑफ 1
into P of red by 1 plus P of 2 आ रहा है क्या समझ में? यार ये तो नया सवाल नहीं यार, ये तो अपन ने बनाया था. हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी, वी हैव सीन एटलीस्ट 4 5 6 क्वेश्चंस. P of 1 सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग 1/2 और बैग 1 सिलेक्ट करने के बाद में रेड कलर की बॉल 7C1 डिवाइडेड बाय 17C1 7/17 7/17 1/2 into getting a red color ball from the second bag is going to be 10/18 10C1 divided by 18C1. that is nothing but the total probability of getting the red ball. what we want, हमें पता है रेड तो आ चुकी है, ये बताओ कि बैग 1 से है. ओके तो P of can you calculate that? 7/34 plus 2 into 5/18 जो भी आ रहा है. What is there in the numerator? न्यूमरेटर में क्या होगा? फर्स्ट बैग से रेड आना है ना. अरे सीधे सीधे ये टर्म न्यूमरेटर में आएगी और क्या होना है? दैट इज 1/2 into 7/17 divided by 7/34 plus 5/18. कैलकुलेट कर लीजिए. दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. सॉरी, इट्स नॉट ए टोटल प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड. ये बताओ कि इट इज कमिंग फ्रॉम बैग 1. कितना आ रहा है टोटल? देखिएगा जरा. ये समझ में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए. एनीबडी एनी डाउट प्लीज आस्क. अब पूछो जरा. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको ये देखना होगा कि अरे यार ये बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, इट इज अ रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाली बात हो रही है. रेड कलर की बॉल तो आ चुकी है, ये बताओ कि बैग 1 से आ रही है रिवर्स. और आपको बहुत क्लियर कट मीनिंग पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो. A/B और B/A दोनों बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के हैं. रेड डिवाइडेड बाय 1 अगर लिखा हुआ है तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने पर रेड आने की प्रोबेबिलिटी, और जब 1 बाय रेड लिखा है इसका मतलब रेड तो आ चुकी है, इट इज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट. जो पूछा गया है वो रिवर्स से. आ रहा है क्या समझ में? व्हाट इज दैट सम? सम कितना आ रहा है? ये तो देखा कि आपने टोटल नहीं कर पाए. 1 डिवाइड बाय 306. ओके ठीक है. Now look for a previous year JEE question, simple question, but it was asked in the year 2005. And according to that question, a person goes to office. पहले मैंने आपको एक बात जरूर समझाई है, प्रोबेबिलिटी का जो भी सवाल हो, क्वेश्चन का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है. क्या बोला गया है और आपने क्या समझा है बहुत जरूरी है. जैसा बोला गया है क्या वैसा ही समझा है. So a person goes to office either by car, scooter, bus or train. These are the 4 means of transportation there. ये जो car, scooter, bus और train. The probability of which being 1/7, 3/7, 2/7 and 1/7 respectively. कार से जाता है 1/7, स्कूटर से जाता है 3/7, बस से जाने के लिए 2/7 और ट्रेन से 1/7. नहीं भी देता तो 1 माइनस करके हम बोल देते. These are the 4 ways. एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव होता है बात है. खैर, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट. सुनिएगा सवाल ध्यान से. प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट इफ ही टेक्स कार, स्कूटर, बस और ट्रेन इज 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9 respectively. Probability that he reaches office late if he takes car, scooter, bus or train is 2/9, 1/9, 4/9 and 1/9 respectively. Given that he reached office in time, what is the probability that he traveled by a car? लैंग्वेज को सीखना समझना बेहद जरूरी है. इवेंट क्या हुई है? Given that he reached office in time, इवेंट ये हुई है कि वो ऑफिस
भाई दो बातें हैं, लेट होने की प्रोबेबिलिटी दी है, या तो लेट पहुंचेगा या टाइम पे पहुंचेगा। गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, वो टाइम पे पहुंच गया। तो इफ ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम, इवेंट हो चुकी है, क्या इवेंट हुई है? ही रीच्ड ऑफिस इन टाइम। ये बताओ कि वो कार से गया था तो वो ठीक टाइम पे पहुंचा। अब देखें जरा इसको, these are the four means of transportation. Probability वो कार से ट्रेवल करता है, that is given as 1/7. Probability वो स्कूटर लेके जाता है 3/7. बस 2/7 and train is 1/7. That is the data given to you. Already पता है आपको, तो दिया हुआ है। At the same time, प्रांशु पहले समझो, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीच्ड ऑफिस लेट, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी है कि वो लेट हो जाता है। कार से जाता है लेकिन लेट हो जाता है, स्कूटर से जाता है लेट हो जाता है। कैसे लिखोगे आप? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बिकमिंग लेट, है ना, एल से डिनोट कर दूं, चलो लेट लिख देता हूं मैं यहां पर, या इवेंट, है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी ई यहां पर डिपेंड करता है, क्या डिनोट कर रहा है ई? ही रीचेज ऑफिस लेट। राइट, तो P ऑफ E बाय सी, व्हाट इज दैट? क्या गिवन है? वो कार से जाता है और लेट हो जाता है 2/9। ओके, स्कूटर से जाने पे लेट होता है 1/9, बस में काफी लेट हो जा रहा है 4/9, और लेट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है इज 1/9। प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेक इट 1, है ना, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव वेज हैं। इन चारों में से किसी एक से ट्रेवल करेगा वो, और एट ए टाइम एक ही से ट्रेवल करेगा। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते तक स्कूटर से गया और फिर इधर कार पे चला गया, ऐसा फिर ट्रेन पकड़ ली, ऐसा नहीं हो पा रहा। मतलब एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। कि लगा ज़्यादा लेट हो गया, अब कार छोड़ो, बस पकड़ लो या ट्रेन पकड़ लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। पूछा क्या है उसने? पूछा ये है कि वो ऑफिस टाइमली पहुंच गया। इवेंट ये हुई है कि वो टाइमली पहुंच गया। ये बताओ कि वो कार से गया था इसलिए टाइमली पहुंचा है। क्या पूछा गया है आपको, ये बता दो मुझे। पी ऑफ जो पूछा गया है आपसे, सी बाय व्हाट? ई कॉम्प्लीमेंट। ई को अगर मैं डिनोट कर रहा हूं लेट होना, तो ई कॉम्प्लीमेंट, आप ठीक बोल रहे हैं, वो राइट टाइम पहुंच गया। ई कॉम्प्लीमेंट कब? जबकि कार से ट्रेवल किया था। दैट इज द रिक्वायरमेंट। ये तो समझ में आना चाहिए ना, कर क्या रहे हैं हम। हाउ टू राइट दैट? कैसे लिखोगे आप? इन द न्यूमरेटर पहले तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बिकम द सैंपल स्पेस हियर। लेट तो हो गया वो, सॉरी, टाइमली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कब? जबकि वो कार से गया था और टाइम पे पहुंचा। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। P ऑफ C एंड E कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे रे भाई? 2/9 लेट होने के लिए, तो राइट टाइम 7/9। एट बाय 9 पक्का ना? कोई परेशानी तो नहीं? 5/9। एट बाय 9। ई कॉम्प्लीमेंट यहां डिनोट कर रहा है टाइम पे पहुंचना। ये सभी को समझ में आना चाहिए जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं। डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट लेट होना, सॉरी राइट टाइम पहुंचना, सी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट।
समझा रहा हूं मैं, पूरा लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Right? And now just put the values. We are interested in ऑफिस टाइम पे पहुंचा बाय कार, P of C 1/7 into 7/9 divided by 1/7 into 7/9 plus scooter 3/7 into 8/9 plus bus 2/7 into, बस के लिए सॉरी ये स्कूट, दिस इज B 5/9 plus train 1/7 into 8/9। आई होप बहुत ठीक ढंग से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को क्या किया गया है। कैन यू गिव मी द रिजल्ट? आई थिंक इट इज 1/7, इट इज 1/7। That's a previous year JEE in the year 2005 it was asked. Subjective exam. But it is there in NCERT in different form. किसी दूसरे लैंग्वेज में था वो, डॉक्टर का पेशेंट को विजिट करना, अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी गेटिंग दैट। डॉक्टर का यहाँ पे ऑफिस टाइम पे पहुंचने की बात थी, अब वो था क्वेश्चन डॉक्टर का पेशेंट को विजिट करने, इन्हीं चारों मीन्स से। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है?